Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome in today's class, and as you know that I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher on the behalf of Subrat Singh Children Academy Jaunpur. I am welcoming you to all once again to your official YouTube channel Ajay Tiwari Science Classes. So as you know that we have discussed about asexual reproduction and their types as well as advantages and disadvantages of the asexual reproduction in the previous video. Yes, all these were the asexual reproductions and their types in the previous videos. These are the quick recaps. You can see from here spore formation, budding, fragmentation, as well as you can see various other modes. So let's quickly recap and then start. So in today's class we are going to discuss about the sexual reproduction. We are going to discuss about the sexual reproduction because as you know in previous videos we have discussed about the asexual reproduction. So today we are going to discuss about the sexual reproduction, and in sexual reproduction you know that both the parents involved. It means that in sexual reproduction there is the involvement of both the parents. Those may be male and female. You have studied that in asexual reproduction there was involvement of single parent, but here both the parents, that may be mother and father, or we can say that male and female, they have been involved in the production of offspring, and the event of sexual reproduction is completed. This is completed in following steps. अगर आप देखें इवेंट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, कुछ इस तरह से स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है. स्टेप नंबर 1, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट. फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट जिसे आप कहते हो स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट that is known as ovum. It means that in step number 1 there will be formation of male and female gamete. In the case of human being, the male gamete is known as sperm, and in the case of females the gamete is known as ovum. So we can say that in the case of human being the male gamete is known as what? Sperm, and the female gamete is known as ovum. It means that sperm will form by the process of spermatogenesis and ovum or egg will form by the process of oogenesis. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम आपको दूसरा स्टेप बताएंगे. अब होगा there is transfer of gamete. अगर गैमीट बन गया है बेटा तो अब उसका ट्रांसफर होगा, और कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन in which male deposited the sperm into female's reproductive tract. यानी यहाँ पे मेल क्या करता है? स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसको आप वजाइना कहते हो. बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. थर्ड स्टेप में क्या होगा? देयर विल बी फर्टिलाइजेशन. थर्ड स्टेप में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. इन द स्टेप नंबर 1 देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. There was formation of male and female gametes. In the step number 2 there was transfer of gamete. In the step number 3 there will be fertilization. Actually what is fertilization? Fertilization, as you know, that is what? Fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete, यानी आप कह सकते हो sperm and egg, or we can also write ovum. Okay. Next and last, development of zygote, यानी फ्यूजन होगा किसका? मेल और फीमेल गैमीट का. क्या बनेगा? जाइगोट. अगले स्टेप में बेटा क्या होगा? जाइगोट का डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और वी कैन से दैट डेवलपमेंट ऑफ embryos. So all these are the events of sexual reproduction in the case of human being. So
we will discuss all these events in detail when we will discuss male and female reproductive organs separately. मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, oogenesis कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है. All these points will be discussed in detail. So I am starting with male reproductive system now. ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से अब हम देखेंगे मेल reproductive system. So in your NCERT there are only 3 parts given. Those are testis, vas deferens and penis, but we will discuss all those found in the case of male reproductive system. तो कुछ ऐसे मैं पॉइंट बताऊंगा, those are not part of your NCERT because this chapter is also a part of your class 10th and class 12th. That's why we will take a full introduction here and then we will discuss female reproductive system. तो बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके पास होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देयर आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम कहते हैं किसको? टेस्टिस को. Why this is known as primary sex organ? Because testis is just taking part in the production of sperm as well as this is also helping in the process of adolescence. ठीक है बेटा, यहाँ से देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से आएंगे. आपका यहाँ पे दिखेगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस. यहाँ से आप इसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रख सकते हैं. इसके साथ साथ आपकी बहुत सी ग्लैंड्स हैं, जैसे सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसिकल, एक है आपका और प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड. यू विल गेट वन मोर, काउपर्स ग्लैंड. ठीक है, ETC. All these are known as what? Secondary sex organs. You will get also here one more, that certain kind of ducts. In ducts you will get vas deferens. आपको यहाँ से vas deferens देखने को मिल जाएगी बेटा. इसके साथ साथ आप देखेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट? यानी एक ऐसी डक्ट जो यूरिन को भी रिलीज करने में, स्पर्म को भी रिलीज करने में मदद कर रही है, उसको हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, या आप बेटा कह सकते हो यूरेथ्रा. ठीक है, सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वी विल कंसीडर इट बाय मींस ऑफ अ डायग्राम in which I will provide a particular slide, and in that slide all these parts will be shown. So here you can see the diagram of male reproductive system where various parts are shown. We will discuss in very detail all these parts in the next slide when we will discuss each and every point one by one. So now we will discuss about the first, that is testis. ओके बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. दिस इज व्हाट? स्मॉल. कैसा होता है? छोटा सा ओवल, स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर, स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी. एंड इन बायोलॉजिकल टर्म्स उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा abdominal, extra abdominal. What is meaning of extra abdominal? Means that outside the abdomen, यानी abdomen के बाहर, outside the body. ठीक है, तो small oval structure outside the body, that is extra abdominal, and encloses in scrotum. यानी दो टेस्टिस होते हैं और उन दोनों टेस्टिस को एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्क्रोटम, उसमें बंद कर दिया जाता है.
यानी एक स्किन का फोल्ड होता है, पाउच होता है, उसी पाउच के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कभी कभी हायर क्लासेस का है, व्हाई टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बिकॉज it favors the sperm production. It favors the sperm production that require low temperature than the बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी क्यों है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। इस वजह से टेस्टिस बाहर है। अगर वो अंदर होता तो जितना बॉडी का टेम्परेचर है उतना वहाँ पे भी होता, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो हमने लिखा टेस्टिस स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड इनक्लोजेज इन स्क्रोटम बिकॉज it favors the sperm production that require low temperature than the body temperature, or we can say that here lower temperature than the body temperature. Okay बेटा, टेस्टिस के 2 काम होते हैं। What is the function of testis? Function of testis बेटा, टेस्टिस का पहला फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। यानी जो टेस्टोस्टेरोन है उसको हम कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। क्यों कहते हैं? बिकॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। यानी कोई भी मेल आप देखते हैं, ह्यूमन बीइंग देखते हैं, तो वो मेल क्यों है? क्योंकि उसके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। वो फीचर्स, वो कैरेक्टर्स क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यानी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। और स्पर्म का प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं मेल गैमीट का प्रोडक्शन कहाँ होता है बेटा? टेस्टिस में होता है। ओके, यहाँ से एक पॉइंट और देखेंगे। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन testis by the process of spermatogenesis, यानी बेटा स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन टेस्टिस, यानी टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और उस स्पर्मेटोजेनेसिस से किसका प्रोडक्शन होता है? स्पर्म का। अब कभी कभी आपके हायर क्लासेस का क्वेश्चन है कि टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कहाँ होती है? तो टेस्टिस के पास एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस में एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यानी अगर आप हायर क्लासेस में हैं तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि व्हाट इज द लोकेशन और व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो आप बताओगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। चूंकि आप अभी लोअर क्लासेस में होता है, 8th में, इस वजह से आप सीधा कह सकते हो कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस में होता है। लेकिन अगर आप अपने नॉलेज के लिए रखना चाहते हो तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था टेस्टिस में, वो टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हैं? ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और साइट होते हैं किसका? स्पर्म के प्रोडक्शन का। नाउ वी हैव जस्ट प्रोड्यूस्ड और वी हैव जस्ट सिंथेसाइज्ड
or we have just make the sperm and it's now time that this sperm will be transferred. ठीक है, इसको आगे की तरफ भेजा जाएगा क्योंकि टेस्टिस में बना है, टेस्टिस से ये फिर पीनिस के माध्यम से बाहर आएगा बेटा। ठीक है, तो उसको अब बाहर लाना है, तो वो बाहर आने का उसका रास्ता कौन सा है अब मैं आपको वो बताऊंगा। तो अभी तक हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डिस्कस कर लिया, यानी टेस्टिस इज नोन एज व्हाट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इट मीन्स दैट वी हैव डिस्कस विथ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके बेटा, अब हम यहाँ पे आएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, हम आपको बहुत शॉर्टकट में बताते हैं यहाँ से क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। पहला है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्या होता है बेटा, मैचुरेशन एंड टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यानी स्पर्म बन गया, अब वो स्पर्म टेस्टिस में बना, फिर टेस्टिस से कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस में उसका क्या होगा, मैचुरेशन होगा, यानी वो बड़ा होगा, हष्ट पुष्ट होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के लिए वो वहाँ पे आराम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एपिडिडाइमिस के बाद बेटा हमने आपको बताया था सेमाइनल वेसाइकिल। इट्स सिक्रीट, ये क्या करती है बेटा, इट्स सिक्रीट सेमाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है, सिक्रीट सेमाइनल फ्लूइड दैट lubricate the sperm, यानी एक तरह का ये फ्लूइड सिक्रीट करेगी, कौन, सेमाइनल वेसाइकिल, और उसकी वजह से जो स्पर्म बना था वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड के रूप में हो जाएगा या उसको लुब्रिकेट कर दिया जाएगा। इसके साथ एक और होता है बेटा, थर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, इट ऑल्सो हेल्प इन lubrication of sperm, यानी सेमाइनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड एक साथ मिलकर स्पर्म को लुब्रिकेट करने का काम करती हैं। एक और हमने आपको बताया था काउपर्स ग्लैंड। व्हाट इज द रोल ऑफ काउपर्स ग्लैंड? Cowper's gland release sticky substances during sexual contact to lubricate the penis। यानी काउपर्स ग्लैंड क्या करती है, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है बेटा तो एक सब्सटेंस जो कि स्लाइटली येलो कलर का होता है उसको रिलीज करती हैं, और रिलीज करने की वजह से जो पेनिस का टॉप पोर्शन होता है जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं वो लुब्रिकेट हो जाता है और फिर उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स में आसानी हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। लेट्स डिस्कस फ्यू मोर। वास डिफरेंस। What is vas difference? Vas difference carry the sperm, यानी स्पर्म को कैरी करने का काम कौन करती है? वास डिफरेंस। हमने आपको एक और बताया था, दैट वाज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और हमने इसको बताया था यूरेथ्रा। ओके, and urinogenital duct or urethra, what is this? Through it sperms and urine both comes out through
पेनिस, यानी स्पर्म को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, वास डिफरेंस, और फिर जो स्पर्म बाहर की तरफ आ रहा है, रिलीज किया जा रहा है, वो किस रास्ते से होके आ रहा है, यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा से यूरिन भी बाहर आती है और स्पर्म भी बाहर आता है। बस ध्यान रखिएगा, बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड एट द सेम टाइम। ठीक है, जब स्पर्म को बाहर आना होगा उस समय यूरिन नहीं आएगी, और जब यूरिन बाहर हो रही होगी तो उस समय स्पर्म नहीं आएगा। ठीक है, ये एक से एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है। अगर स्पर्म बाहर आना है तो यूरिन नहीं, अगर यूरिन है तो स्पर्म नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स कंसीडर द लास्ट स्ट्रक्चर, दैट इज पेनिस। दिस इज व्हाट copulatory organ, this is what copulatory organ help in deposition of sperm, यानी स्पर्म इसी रास्ते से फीमेल्स की बॉडी में सेक्सुअल कांटेक्ट के समय भेज दिए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने कंप्लीट आपको बताया, कुछ पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं। ओनली 3 पॉइंट्स आर मेंशन इन योर एनसीईआरटी, दोज वर टेस्टिस, देन आफ्टर वास डिफरेंस एंड देन आफ्टर पेनिस, यानी 3 ही पार्ट्स वहाँ पे बताए गए हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जितने भी पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सभी का एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको दे दिया है बेटा। ठीक है, इससे एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आपके अंदर, और जब आगे चल के आप हायर क्लासेस में 10th और 12th में स्टडी करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। All my dear students, you can see here the diagram that is given in your NCERT of male reproductive system, where only 3 parts are shown. Those are testis, oval, you can see 2, and penis, that is elongated part, and sperm duct, that is vas deferens। केवल 3 पार्ट दिखाए गए हैं। टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म बनता है, पेनिस जिसके थ्रू वो बाहर आता है, और स्पर्म डक्ट जो उसको कैरी करती है। अब हम दूसरा डायग्राम आपको दिखाते हैं। यस, नाउ यू कैन सी हियर, जहाँ पे दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आपको दिखाए गए हैं। यू कैन सी हियर टेस्टिस 1 in पेयर, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ से आप देखिए, इसके बाद आपने देखा टेस्टिस के जस्ट ऊपर क्या है, एपिडिडर्मिस, वेयर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म and maturation of sperm takes place. Then there is ductus deferens that carry the sperm from epididymis and it reaches into the ejaculatory duct, and there is 2 secretions of seminal vesicle and prostate glands, those mix with it, and from there through urethra it comes out through the सोलन पोर्शन ऑफ पेनिस, दैट इज नोन एज ग्लांस पेनिस। यानी स्टार्ट किया आपने टेस्टिस से, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस जहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज होता है स्पर्म का, और मैचुरेशन, फिर इसको आगे लेके वास डिफरेंस जाती हैं, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, इन दोनों का सिक्रेशन उसमें मिक्स होता है, वो लुब्रिकेट हो जाता है, और उसके बाद फिर यूरेथ्रा से होता हुआ ग्लांस पेनिस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। प्यारे बच्चों, आओ अब डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी हैव कंप्लीटेड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम comprises of ovary, second oviduct, third uterus, fourth cervix, and last vagina. We will just take introductory part. Ovary, this is what ovary is, one pair situated in the abdomen, one pair situated in the abdomen on either side of backbone। यानी एक ओवरी की लोकेशन क्या होती है, ये आपका एब्डोमेन है, एक यहाँ पे राइट में, एक लेफ्ट में होती है। ठीक है बेटा, इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी? फंक्शन ऑफ ovary, we will consider here 2 functions. The function number 1, production of
egg simultaneously, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक बार राइट ओवरी ने एग को रिलीज किया है तो अगली बार लेफ्ट ओवरी रिलीज करेगी. So here eggs are released simultaneously, or we can say that production of egg or production of female gamete. Okay. Second, also release estrogen hormone. Also release estrogen hormone responsible for femaleness. यानी जैसा कि आपको हमने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा था, टेस्टिस की मेल को मेल बना रहा था, फीमेल क्यों है, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन. एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो कि फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वो यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे बेटा. ओविडक्ट दूसरा है, दिस इज ऑल्सो वन इन पेयर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस इज ऑल्सो नोन as fallopian tube, and here process of fertilization takes place. यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में. उसी को हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं. और यहाँ पे मेल और जो कि मेल का गैमीट था स्पर्म, फीमेल का गैमीट था एग, वो आके मीट करेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. थर्ड, यूटेरस. दिस इज व्हाट, inverted pear shaped structure and site of development of baby, or we can write fetus. ठीक है बेटा, यानी यूट्रस क्या होती है, इसी को हम ऊम्ब भी कहते हैं. ये इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बेबी डेवलप करता है, फीटस की ग्रोथ होती है, या हम कह सकते हैं एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है. और जैसा कि मैंने बताया, इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ऊम्ब. इसको हम क्या कहते हैं, ऊम्ब कहते हैं. एंड हियर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस. ठीक है बेटा, अब बहुत ज़्यादा चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपको हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं. इसके पास 3 लेयर होती हैं यूट्रस के पास. ठीक है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम. ठीक है, पेरीमेट्रियम प्रोटेक्टिव होती है. ठीक है, मायोमेट्रियम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से डिलीवरी आसान हो जाती है. और इंडोमेट्रियम जो होती है बेटा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय टूटकर बाहर आ जाती है. हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं. यूट्रस के पास क्या होती है, इट हैज़ 3 लेयर्स. द फर्स्ट वन इज पेरीमेट्रियम. ये क्या करती है, प्रोटेक्शन. ठीक है बेटा. सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम. ये किस में हेल्प करती है, दिस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी. और तीसरी जो होती है बेटा, इंडोमेट्रियम, ये किस में हेल्प करती है, सिक्रीशन में. इट मीन्स दैट सिक्रीशन एंड ब्रेक्स ड्यूरिंग menstrual cycle. ठीक है, and comes out as blood and म्यूकस. यानी म्यूकस और ब्लड के रूप में ये टूटकर बाहर आ जाती है. तो अभी तक हमने क्या देखा, ओवरी,
ओविडक्ट, यूट्रस, ठीक है, 3 हो गए। चौथा यहाँ से देखिए बेटा सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स क्या होती है? यूट्रस, यूट्रस ओपन इनटू, यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रो सर्विक्स, यानी यूट्रस वजाइना में ओपन होती किससे? सर्विक्स से। एंड सर्विक्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। लास्ट में देखेंगे वजाइना, वजाइना क्या होती है? इट रिसीव स्पर्म और वी कैन राइट सीमेन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है बेटा। तो ये था टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी फ्रॉम हियर द बेसिक डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वजाइना है। वजाइना क्या करती है? सीमेन या स्पर्म को रिसीव करती है। इसके ऊपर सर्विक्स है। सर्विक्स क्या करती है? यूट्रस को वजाइना में ओपन कराती है। फिर आप आगे देखें ओवरीज दिखाई गई हैं लेफ़्ट एंड राइट। अब यहाँ से आप देखें ओवरीज जो लेफ़्ट और राइट हैं, इससे एग रिलीज़ होता है। जो फिम्बरी यहाँ पे है वो हेल्प करती है उन एग को रिसीव करने में। 2 लूप यहाँ से आपको दिख रहे हैं, उनको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसके साथ साथ मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये आपको यूट्राइन की जो 2 वॉल हैं वो यहाँ से दिख रही हैं बेटा, ठीक है। और ये तीसरा डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे यूट्रस का पोर्शन दिखाया गया, उसके बाद 2 बड़े बड़े लूप हैं। ये आपका ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। फिर इसी से लगी हुई ओवरी हैं लेफ़्ट एंड राइट, यहाँ से देख सकते हैं। और इन ओवरी से निकलने वाले एग को फिम्बरी जो है वो गैदर करने में मदद करती है। सर्विक्स की मदद से यूट्रस वजाइना में ओपन हो रही है। यहाँ पे हमने आपको बताया बेटा सीमेन और स्पर्म तो दोनों अलग अलग होते हैं। सीमेन क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड दैट कंटेन्स स्पर्म, यानी सीमेन एक फ्लूइड है जिसमें स्पर्म मिलता है। आप ये मत कहिए कि सीमेन और स्पर्म एक ही है, नहीं, सीमेन में ही स्पर्म मिलता है जिनकी संख्या 200 से 300 मिलियन तक हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द डायग्राम, वहाँ से आप इमेजिन करो, देख पाओगे। यानी अब हमने देख लिया कि मेल और फीमेल गैमीट कहाँ बनते हैं। मेल गैमीट बनते हैं टेस्टिस में, फीमेल गैमीट बनता है ओवरी में, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमीट बन चुका है। अब हमको क्या कराना है? इनका फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। सो इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the fertilization and development of embryo. So that is all about for today. I hope that after watching the video there will not be any doubt, and if you have any doubt you can leave in your comment box. And after watching the video, if you also able to understood all the concept, you can also like the video and you can also share with your friends. Okay, so like always, have a nice day, keep smiling. Jai Hind.